Hello students, I welcome you all to my channel SB EduPoint and I hope you all are doing good. Students, इस वीडियो में मैं आपको कुछ और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि 2020 के बेसिक एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए थे। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फॉर एन AP इट इज़ गिवन दैट द फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 54, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -3 and the nth term is given as 0 and you need to find n and the sum of the first n terms of the AP। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि क्वेश्चंस को एक बार खुद से करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके, और फिर उनके सल्यूशन को चेक करें। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स, आपने देखा क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म which is denoted by A is equal to 54, then we have common difference D is equal to -3 और जो तीसरी चीज क्वेश्चन में दे रखी है वो है nth term of the AP which is equal to 0। जो सबसे पहले चीज हमें कैलकुलेट करनी है वो है the value of n। n means the number of terms of the AP और number of terms निकालने के लिए हमने बेसिक्स में पढ़ रखा है फॉर्मूला an is equal to a plus n-1 इंटू टी। तो इस फॉर्मूले में जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं उनको सब्सटीट्यूट करके लिखेंगे। सो आई हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू ऑफ an, a एंड d। 54 प्लस n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू 0 और जो nth टर्म क्या है 0। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे n की वैल्यू को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वालिटी शिफ्ट करके 54 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n और इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं 57 इज इक्वल टू 3n। तो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी? I'll take 3 in the denominator and cancel out. So the value of n will be equal to 19। इससे क्या पता चलेगा कि जो हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 19। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है a और nth टर्म। सो सम निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 a plus an means last term, the first term and the last term। इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज को पुट किया है। n की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी है जो कि 19 है। 19/2 into 54 plus 0 that will give us the answer as 513। So the sum of the first n terms of the AP is 513। आई होप ये आप सभी को समझ आ गया होगा और फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन and this question was asked of 3 marks in basic question paper. Question is, if the sum of the first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, then you need to find the sum of the first n terms. Alright, so now I am going to solve this question for you all. And the very first thing that is given in the question is the sum of the first 7 terms of the AP which is equal to 49. And the next thing we have is the sum of 17 terms of the AP which is equal to 289. And we already know the formula to calculate the sum of n terms which is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d. If you have any doubts related to the formula, you can just go to the channel and watch the very first
video of the arithmetic progression basics, and then you can get back to this video. Alright, now next statement I am going to replace the n with 7. So 7 by 2 into 2a plus 60 will be equal to 49. And next I will replace the value of n and Sn with 17. So I will get these two equations, and after simplification I can write this equation as a plus 3d equal to 7. You can cancel out this 49 with 7, and here you can see 289 is the square of 17. So after cancellation you will get the equation as a plus 8d equal to 17. So I will get two linear equations and two variables a and d. I need to calculate the value of a and d. So solve these two equations, and the value you will get for the first term will be equal to 1, and the common difference comes out to be equal to 2. And then I will place these values in the formula. So I will get the sum as equal to n square. Okay, now let's move on to the next question. And here we go. The question says that if nth terms of two APs 23, 25, 27 and so on, and the second API is 5, 8, 11, 14 and so on are equal, then find the value of n. आई थिंक आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो अब हम जल्दी से इसका सल्यूशन भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन में दो एपीज दे रखी हैं, इसे मैं फर्स्ट मार्क कर देती हूँ और इसे सेकंड मार्क कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एपी की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 23. सो a will be equal to 23 and the common difference जो कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, the next term minus the previous term. So 25 minus 23 will be equal to 2. So for the first term a will be equal to 23 and common difference d will be equal to 2. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें nth टर्म कैलकुलेट करनी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि जो दो एपीज का nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है। तो nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले में हम a और d की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके लिखेंगे। सो ए एन विल बी इक्वल टू 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2. दिस विल बी माई फर्स्ट इक्वेशन। यही चीज अब हम सेकेंड एपी के लिए भी देखेंगे। सेकेंड एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 5, और हम d को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 11 माइनस 8 विल गिव अस d as 3. So for second equation, for second API, A will be equal to 5 and D will be equal to 3. Now the nth term for second AP will be AN equal to 5 plus n minus 1 into 3. जैसा कि आगे क्वेश्चन में दे रखा है, nth term for two APs are equal. So I am going to equate these two equations. So after equating, I will get 23 plus n minus 1 into 2 equal to 5 plus n minus 1 into 3. इसको आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 23 प्लस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 2n minus 2 will be equal to 5 plus 3n minus 3. कांस्टेंट टर्म्स को मैं इक्वालिटी के लेफ्ट साइड ले लेती हूँ और जो हमारा वेरिएबल है दैट इज n, आई विल टेक दैट टू द राइट साइड. सो 2n विल बी ऑन राइट साइड, सो इट विल बी n equal to 23 minus 2
will be 21. So 21, and here 5 minus 3 will give us 2. So 21 minus 2 will give me the answer as 19. So my n, that is the nth or number of terms, will be 19. So the value of n we have calculated as 19. स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्क्रॉल करके नीचे दिए इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि बिना मिस किए आप चैनल की सारी वीडियोस देख सकेंगे। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। The sum of the four consecutive numbers in AP is 32 and the ratio of the product of the first and last terms to the product of middle terms is 7:15. Find the numbers. स्टूडेंट्स, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बार में अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आराम से उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं उसको नोट करिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2020 के स्टैंडर्ड पेपर में 4 मार्क्स का पूछा गया था। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी। तो सपोज मैंने 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एपी में लिए हैं, a-3d, a-d, a+d और a+3d। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो इन 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो क्या है, 32। सो मैंने क्या किया, इन चारों को ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी, a विल बी इक्वल टू 8। अब हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है किसके बीच में, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय टू मिडिल टर्म्स। सो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज a² माइनस b² will be equal to a plus b into a minus b। इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमने सिंप्लीफाई किया इसे एज 7 into a² minus d² is equal to 15 into a² minus 9d²। So I will get the value of d as plus minus 2 और लास्ट में हमें नंबर्स निकालने थे तो हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे इन नंबर्स में तो हमें AP के जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे और फिर भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और ये रहा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो कि आपके लिए होमवर्क के लिए दिया गया है, इसे आप सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन 2020 के स्टैंडर्ड पेपर में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका सम दे रखा है 287 एंड आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि nth टर्म आपको निकालना है। Thank you for watching the video. To make sure that you don't miss any of the videos, please subscribe our channel SB EduPoint.